اب ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے پروگرام کی طرف آتے ہیں، اور آج کے پروگرام کے 2 تقریر ہوگی، جس میں پہلی شری لکشمی شنکر آچاریہ جی کی رہیں گی اور دوسری تقریر شیخ ارشد بشیر مدنی کی رہیں گی۔ اس کے بعد اوپن کوشچن آنسر کا سیشن ہو جائے گا۔ اب میں جس شخص کو آواز دینے جا رہا ہوں وہ لکھنؤ سے آئے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ سوامی جی اس پروپیگنڈا میں متاثر ہو گئے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، دا ہسٹری آف ٹیررزم۔ لیکن بعد میں سوامی جی نے جب اسلام سے گہرا مطالعہ کیا تب انہوں نے سچائی کا اسلام دہشت گردی کو ویرودھ کرنے والا مذہب ہے۔ اس کے بعد سوامی جی نے دوسری کتاب لکھی، اسلام آتنک یا آدرش۔ یہ کتاب مختلف زبانوں میں آئی ہے۔ اب میں بڑے ہی ادب سے سوامی شری لکشمی شنکریہ جی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا اظہار خیال کریں۔ اوم پورنمدః پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔ اپستھت بھائیوں، جیسا کہ ہمارے نوجوان بھائی نے کہا کہ آج پوری دنیا میں اسلام کے ساتھ سازش کی جا رہی ہے، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ میں بھی اس دشپرچار سے پربھاوت تھا اور میں نے کتاب لکھی، اسلامک آتنکواد کا اتہاس، دا ہسٹری آف اسلامک ٹیررزم کے نام سے یہ ممبئی سے پرکاشت ہوا، جسے شری بالا صاحب ٹھاکرے نے ریلیز کیا تھا۔ لیکن بعد میں نے محسوس کیا کہ اس دنیا میں 100 کروڑ سے اوپر مسلمانوں کی تعداد ہے، اور اگر اسلام میں کوئی آتنک ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ 100 کروڑ لوگ اس کے انویائی نہ ہوتے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ میں نے پھر سے اسلام کا مطالعہ کیا، اچھی طرح میں نے اس کا ادھین کیا، تو میں نے پایا کہ قرآن مجید کی جن آیتوں کو میں نے آتنکواد سے جوڑا تھا، جن آیتوں میں مجھے آتنکواد دکھائی دیا تھا، وہ آیتیں آتنکواد کا ویرودھ کرنے کے لیے آئیں۔ یہ مجھے تب پتا چلا جب میں نے اسلام کو شدھ من اور شدھ تن سے پڑھا۔ اگر ایشوری کتاب کو اب شدھ تن اور شدھ من سے نہیں دیکھتے تو آپ کو اس کی سچائی پتہ نہیں چل سکتی۔ جب میں نے اپنے من کو شدھ کیا تو مجھے اپنے آپ پتہ چلا کہ قرآن مجید کی آیت کا صحیح مطلب تبھی پتہ چل سکتا ہے جب یہ آپ کو معلوم ہو کہ آیت کیوں اور کن پرستھتیوں میں اتری۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آیت کیوں اور کن پرستھتیوں میں اتری تو آیت کا صحیح مطلب سمجھ نہیں سکتے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی یعنی آپ کی سیرت پڑھنے کے بعد مجھے یہ راستہ دکھائی دیا اور میں نے اسلام کو صحیح معنی میں سمجھا۔ قرآن مجید کی جن آیتوں کو میں نے اس آتنکواد سے جوڑا اور اسلامک آتنکواد کا اتہاس لکھا، وہ ایک غلط سندیش پورے دنیا میں، پورے ہندوستان میں گیا۔ اس کا ویرودھ کرنے کے لیے، کتاب کا کھنڈن کتاب سے کرنے کے لیے میں نے ایک دوسری کتاب لکھا، اسلام آتنک یا آدرش، یعنی اسلام میں آتنک نہیں آدرش ہے۔ اب ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بتائیں کہ اسلام میں جو یہ آتنکواد کی جو بات آئی، یہ کیسے آئی؟ بچوں کو جو اتہاس پڑھایا جاتا ہے، آج ہمارے پورے ملک میں ایک غلط اتہاس پڑھایا جاتا ہے،
وہ بچوں کے من میں وہ بیٹھ جاتا ہے کہ جو مسلم اتہاس ہے، یہاں بادشاہ آئے، یہاں مسلمان جو عرب سے آئے انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، مسلم بادشاہوں نے کس طریقے سے حکومت کی، یہ جو بچوں کے من میں جو یہ بیٹھایا جاتا ہے غلط اتہاس پڑھا کر کے، اس سے اسلام کے لیے نیگیٹو چیز بچوں کے من میں جاتی ہے۔ اور یہی بات میرے من میں بھی گئی۔ کچھ مسلمان بھائیوں کا نادانی سے جو اخلاق، نادانی بھرا اخلاق ہوتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، جس سے غلط میسج جاتا ہے۔ ہم نے اپنے جو کتاب میں جن چیزوں کو دیا وہ اسی غلط میسج کی وجہ سے دیا، اور میں اپنے مسلم بھائیوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو یہ میں بتاؤں گا کہ جوش میں آ کر کے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے میسج غلط جائے۔ اگر اسلام کی سچائی کو، اسلام میں جو آیتیں دہشت گردی سے جوڑی جاتی ہیں، ان آیتوں کو اگر آپ صحیح معنی میں دیکھیں، ہم اپنے ہندو بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جیسے سریمد بھگوت گیتا میں انیائے اتیاچار کا ویرودھ کرنے کے لیے ایشور کے آدیش آئے، اسی طریقے سے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے مہابھارت کے یدھ کی اور چلتے ہیں۔ جب کوروں نے ادھرم کا ساتھ لے کر کے، ادھرم کو لے کر کے پانڈووں کا راج ہڑپ لیا اور ان کے ساتھ انیائے کیا، اس انیائے اور اتیاچار کو روکنے کے لیے بات چیت کے جب سارے پریاس وفل ہو گئے، تب جب سارے پریاس وفل ہو گئے، اس سمے ایک ہی راستہ بچا، وہ تھا یدھ کا۔ یدھ روکنے کے لیے، جنگ روکنے کے لیے آخری بات چیت کا سلسلہ جاری کیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ کورو اگر پانڈووں کو 5 پانڈو ہیں 5 گاؤں ہی دے دیں تو یہ جنگ روکی جا سکتی ہے، لیکن کوروں نے کہا کہ 5 گاؤں تو دور، سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر زمین لینی ہے تو جنگ کرنی پڑے گی۔ اور جب ساری بات چیت کے راستے بند ہو گئے، ایک ہی راستہ جنگ کا بچا، تب دھرم یدھ شروع ہوا۔ اور اس دھرم یدھ کے لیے جب سینائیں، دو کوروں اور پانڈووں کی سینائیں آمنے سامنے آ گئیں تو ارجن نے یدھ کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس نے دیکھا ہمارے سامنے ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی دوست، ہمارے ہی گرو، ہمارے ہی دادے پردادے سب کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کو کیسے مار سکتا ہوں؟ اس نے جب یدھ سے انکار کر دیا، تب اللہ یعنی پرمیشور کی طرف سے آدیش آیا، یدرچھیا چوپمنم سورگ دوارم پاورتم سکھنا چھتریا پات لبھنتے یدھ میدرشم۔ اے ارجن، اپنے آپ پراپت ہوئے سورگ کے کھلے ہوئے دروازے کے سامان اس طریقے کی جنگ کو قسمت والے لڑاکے ہی پاتے ہیں۔ اچے تمیم دھرمم سنگرامم نہ کریسیسی تتہ سودھرمم کیرتیم چہتوا پاپم اواپسیسی۔ کنتو یدی تو اس جہاد کو، یدی تو اس دھرم یدھ کو نہیں کرے گا تو اپنے یش اور کیرتی کو کھو کر پاپ کو پراپت ہوگا۔ اور اس طریقے سے یدھ کی شروعات، دھرم یدھ کی شروعات ہوئی۔ کس کے لیے ہوئی؟ اسत्य، انیائے، اتیاچار اور آتنکواد کو روکنے کے لیے۔ جب بات چیت کے راستے سب بند ہو چکے تھے، لڑائی جنگ ہی ایک ماتر راستہ بچا تھا، اسی لیے اس کو دھرم یدھ کہا گیا۔ اسی طریقے سے مکہ میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ یعنی پرمیشور کے سوا کوئی پوج نہیں ہے، سنسار کے اس سب سے بڑے ستیہ کو، ساربھومک ستیہ کو، یونیورسل ٹروتھ کو جب بتا رہے تھے، اس سمے قریش نے یعنی اتیاچاریوں نے، انیائیوں نے آپ طرح طرح کے اتیاچار کرنے شروع کیے، اس ستیہ کو روکنے کا پریاس کیا۔ مسلمانوں کو ہی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اتیاچار کیے گئے۔
उस समय आपके अनुयायियों को यानी मुसलमानों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया, और ये अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। सारी दुनिया में इससे बड़े लंबे अत्याचार की कोई मिसाल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जहां इससे बड़ा अत्याचार कोई नहीं है, वहां इससे बड़ा कोई सब्र नहीं है। इसके बाद भी आप सब्र करने के बाद भी लगातार अत्याचार जारी रहा। 13 सालों तक अत्याचार सहने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वतन छोड़ दिया, मक्का से मदीना चले गए। लेकिन शैतान तो शैतान, उसने वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में एक ही रास्ता बचा, युद्ध का। सारे रास्ते बंद हो गए, बातचीत के सारे प्रयास जब विफल हो गए, तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में परमेश्वर का आदेश आया था जंग करने के लिए, वैसे कुरान मजीद के सूरा 22 आयत 39 में आदेश आया कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़े, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जो सत्य धर्म होता है वो अन्याय नहीं करता, अत्याचार नहीं करता। ये जो असत्य अन्याय और अत्याचार आतंकवाद के रोकने के लिए जो युद्ध का आदेश आया, इसको मर्यादा में बांध दिया गया। सूरा 2 आयत 190 में कहा, अल्लाह का आदेश मौजूद था कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में लड़ो, मगर जाति न करना कि खुदा जाति करने वालों को नापसंद करता है। किस तरीके की जाति? कि यानी निर्दोषों का कत्ल न करना। सूरा 5 आयत 32 में है कि जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारी इंसानियत को जीवन प्रदान किया। दूसरा, कोई भी इबादत खाना जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता हो वो मत तोड़ना। सूरा 22 आयत 39, सूरा 22 आयत 39 अभी हमने सुनाया कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़े, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन 40वीं आयत कैसी है? 40वीं आयत है सूरा 22 की 40वीं आयत, अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता तो राहिबों के पूजा घर और ईसाइयों के गिरजे और मुसलमानों की मस्जिदें और यहूदियों के इबादत खाने जिनमें अल्लाह का बहुत सा नाम लिया जाता है गिराई जा चुकी होती। यानी कि अल्लाह को नापसंद है कि कोई भी इबादत खाना जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता हो गिराया जाए। फिर कैसे कहा जाता है कि मुसलमानों ने मंदिर गिराए? कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा मंदिर जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता हो, जो शुद्ध रहा हो, जो पवित्र रहा हो, उसको मुसलमानों ने कभी नहीं गिराया। इस्लाम ने, अल्लाह ने कभी भी इस तरीके की इजाजत नहीं दी। और मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि अल्लाह के जो ये आदेश हैं इनको मानने के लिए कोई मुसलमान मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इनको मानने के लिए बाध्य है। हर हाल में अल्लाह के इन आदेशों को एक मुसलमान को मानना ही है। तो अल्लाह के इन आदेशों को मानने की बाध्यता के साथ एक सच्चा मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा झूठ है, इतिहास का झूठ। और इतिहास का झूठ ये किस लिए लिखा गया? अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए झूठा इतिहास लिखा कि इस इतिहास को पढ़ करके हिंदू बच्चे इस्लाम के प्रति नेगेटिव थॉट्स रखें और मुसलमानों से दूर रहें और अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से हुकूमत करते रहें, इसलिए ये गलत इतिहास लिखाया गया। हजरत मोहम्मद मैंने साथ में ये भी देखा कि जो भलाई और अहिंसा का संदेश सनातन वैदिक धर्म में है, ठीक वैसा ही इस्लाम में भलाई और अहिंसा का संदेश दिया गया है। अब समय कम है इसलिए हम सनातन वैदिक धर्म के बारे की चीजें नहीं बताएंगे। हम अपने हिंदू भाइयों को, जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जो बिरादराने वतन हैं, उनको इस्लाम के बारे में बता देना चाहते हैं कि इस्लाम के बारे में ही गलतफहमी फैलाई गई है पूरी दुनिया में एक साजिश के तहत।
تو یہ بھلائی اور اہنسا کا سندیش اسلام میں کیا ہے؟ کچھ آیتیں میں بتاؤں گا. سورہ 28 کی آیت نمبر 77 میں ہے، اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول اور بھلائی کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور دھرتی میں فساد نہ چاہو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. سورہ 28 آیت نمبر 83 اس سے بھی اونچی آیت ہے. اس میں ہے کہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم پرلوک یعنی آخرت یعنی جنت کا گھر ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو دھرتی میں جرم اور فساد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. کتنی بڑی چیز ہے! جو دھرتی میں جرم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کو جنت میں گھر خاص طور پر دیں گے. اس سے بھی اچھی آیت، اس سے بھی اونچی آیت جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا کے کسی بھی دھرم میں، وہ ہے سورہ 41 کی آیت نمبر 34. اس میں اللہ نے کہا ہے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو لوگوں کی سخت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں پہلے دشمنی تھی اب وہ تمہارا گہرا دوست ہے. یعنی کسی کی کٹھور بات کا کٹھورتا سے جواب دینے کی مناہی ہے اسلام میں. یہ ہے اسلام کی اہنسا. منسا باچا کرمنا، نہ من سے کسی کو کشٹ پہنچاؤ، نہ بچن سے پہنچاؤ اور نہ کرم سے پہنچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر یہ آیت اتری، یہ آیت اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی اور دل سے آپ کے کرموں میں اتر گئی. اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے، اس راستے میں ایک مکان سے ایک بڑھیا مائی آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، روز کوڑا پھینکتی تھی. ایک دن جب کوڑا نہیں پھینکا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بڑھیا مائی کہیں بیمار تو نہیں پڑ گئی. آپ اوپر گئے، اوپر جانے کے بعد آپ نے آواز دی، مائی. اس نے دیکھا، پوچھا کون؟ جب آپ نے بتایا کہ میں، تو اس نے کہا، اور آپ نے کہا کہ مائی میں یہ دیکھنے آیا کہ تم بیمار تو نہیں ہو گئی، آج تم نے ہمارے اوپر کوڑا نہیں پھینکا تو مجھے لگا کہ کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی ہو. وہ بڑھیا رونے لگی، کہنے لگی، ارے محمد آپ کتنے اچھے ہو، میں آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی اور آپ میرا حال چال لینے آئے ہو. اور انتم سمے میں، آخری سمے میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انویائی ہو گئی، وہ مسلمان بن گئی. یہ ہے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو لوگوں کی سخت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں پہلے دشمنی تھی اب تمہارا گہرا دوست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے کوڑا پھینکنے والی وہ بڑھیا مائی کو اپنا بنا لیا. یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کی سورہ 7 آیت نمبر 199 میں ہے، اللہ کا آدیش ہے، اے محمد چھما کی نیت اپناؤ اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کر لو. اگیانیوں سے کنارہ کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے، کیونکہ اگیانی یہ سمجھیں گے نہیں، بعد میں سمجھیں گے، تھوڑے سمے کے لیے آپ وہاں سے چلے گئے. اور چھما کی نیت، آپ چھما کے ساکشات مورتی تھے. ایک بار ایک غیر مسلم اپنے 2 اونٹوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور کہے، بڑی بدتمیزی سے بولا کہ اے محمد، یہ جو تمہارے پاس جو یہ مال ہے نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا، یہ مال میرے ان اونٹوں میں لاد دو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھما کی مورتی، آپ کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا. آپ نے ہنس کر کہا کہ یہ بتاؤ، آپ نے ہنس کر کہا کہ یہ مال نہ میرا ہے اور نہ کسی کا ہے، یہ اللہ کا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جس طریقے سے بات کی، کیا تم ڈرے نہیں؟ تم کو کوئی خوف نہیں آیا؟ کہنے لگا نہیں، بالکل نہیں. آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا مجھے وشواس ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ویرودھیوں کو بھی وشواس تھا کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو لوگوں کی سخت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. پورا کا پورا اپنے کرموں میں اتار چکے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے وہ
इतने विश्वसनीय थे लोगों के बीच, आखिर में आपने हंस करके उसके एक ऊंट पर जौ और एक ऊंट पर खजूर लदवा दिए। ये थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज के मुसलमान कैसे हैं? उनमें से कुछ मुसलमानों का अखलाक ऐसा है जो आपके अखलाक से ठीक उल्टा है। मैं इलाहाबाद में इसी कपड़े में एक दिन जा रहा था, एक मेरे दोस्त थे, मेरे साथ पढ़ते थे, सैयद इकराम हुसैन साहब, वो हापुड़ में नौकरी करते थे, रेलवे में वो आए थे। तो उन्होंने फोन किया, स्वामी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा मैं इस जॉनसनगंज मोहल्ले में हूं, मैं आ जाता हूं। सब्जी मंडी में रहते थे, जॉनसनगंज के बगल में सब्जी मंडी है। मैं उनकी तरफ जब मुड़ा तो एक गली है अब शाहगंज सब्जी मंडी में, वो अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गई है, उसमें आगे चल करके सौदागर की मस्जिद आज भी है पड़ती। सौदागर की मस्जिद के सामने चूड़ी की दुकान थी। ऊपर छज्जे पर एक मुस्लिम सज्जन एक कांच के गिलास में कुल्ली कर रहे थे। मैं इन्हीं कपड़ों में था। थोड़ी दूर, एक 50 गज दूर रह गया, उन्होंने हमको देखा, हमने उनको देखा और जब थोड़ा और नजदीक गया तो उन्होंने कुल्ली करना रोक दिया। मैंने सोचा कि इन्होंने इसलिए रोक दिया है कि कुल्ला थूकेंगे तो छींट पड़ जाएगी। और सौदागर की मस्जिद यानी उन्हीं के मकान के ठीक बगल से ऊंचाई से रास्ता था सैयद इकराम हुसैन के घर जाने का। तो जैसे ही मैं उधर से मुड़ा, उसके नीचे आया, उन्होंने मेरे ऊपर पूरा पूरा थूक दिया। वो पान की कुल्ली थी, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। मैं इकराम हुसैन के यहां गया, वहां से मुश्किल से 200-300 मीटर दूर उनका घर था। हमने इकराम को आवाज दी, हमने कहा इकराम पानी ले आओ। तो वो आए, कहने लगा वो हमको त्रिपाठी जी कहते थे, त्रिपाठी जी ये कैसे हो गया? मैंने कहा कि ऐसा है, वो सौदागर की मस्जिद के सामने जो चूड़ी की दुकान है ऊपर उन्होंने कहा कि आपने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा अगर मार खाना होता तो कहते, इसीलिए तो उन्होंने कहा किया था। तो कहने का मतलब ये कि एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली का हाल चाल लेने गए, और दूसरे वो सज्जन जिन्होंने मुझे ये समझ करके कि गैर मुसलमान है मेरे ऊपर पान का कुल्ली थूक दी। तो ऐसे लोग नादानी से, ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। पहले मैंने जरूर ये समझा था कि यही इस्लाम है। मैंने बताया कि कुछ लोगों के अखलाक की वजह से द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म लिखी थी। मैंने सोचा था ये इस्लाम है, लेकिन जब वास्तविक इस्लाम को जाना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना, जब कुरान को जाना, जब हदीसों को पढ़ा, तो मुझे उन पर दया आई, उन सज्जन पर, कि वो इस्लाम को नहीं जानते। ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी दोनों के खिलाफ काम करते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी कथनी और करनी के हिसाब से अगर दुनिया चले तो सारी दुनिया में अमन चैन हो जाए। इससे बड़ा सत्य धर्म, इससे बड़ी इंसानियत और कोई हो ही नहीं सकती, जितनी की बड़ी इंसानियत इस्लाम में मौजूद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी में मौजूद है। एक बार मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सज्जन ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों के लिए बद्दुआ कीजिए और उन पर लानत भेजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने किसी के लिए बद्दुआ देने के लिए, किसी पर लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, रहमत के लिए भेजा है। और कुरान मजीद में अल्लाह का आदेश मौजूद था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में है कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए रहमत यानी दयालु बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को अपने कर्मों में उतार चुके थे, उसी के हिसाब से चल रहे थे। आपने फरमाया कि मुझे किसी के लिए बद्दुआ देने के लिए, किसी के लिए लानत भेजने के लिए नहीं, बल्कि दया के लिए भेजा गया है। एक बार आपने फरमाया कि अपने भाई के लिए, चाहे वो जालिम हो या, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम। आपसे पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मेरा भाई मजलूम है तो हम उसकी मदद करना जानते हैं, लेकिन अगर वो जालिम हो जाए
तो किस तरीके से मदद करें आप बताइए। आपका हुक्म है, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन बताइए कि किस तरीके से उसकी मदद करें। आपने फरमाया उस जालिम के हाथ पकड़ लो, यानी उसको जुल्म करने से रोक लो और उसको दोजख की आग से बचा लो, ये उसकी मदद करो। ये थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने एक बार फरमाया, मैं अगर हिंदू भाइयों को बताऊं, अगर कोई मीडिया के लोग हों तो समझ लें कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहना कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है। इस्लाम आया है दुनिया में आतंकवाद को मिटाने के लिए। जो मजहब, जिस मजहब ने सबसे ज्यादा आतंकवाद को सहा, जिस मजहब के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा आतंकवाद सहा और आतंकवाद अंतिम समय तक वो आतंकवाद से लड़ते रहे। आपने कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाया, कभी भी किसी से कड़ाई से बात नहीं की। ऐसे मजहब को आप आतंकवाद से कैसे जोड़ सकते हैं? ये पूरी दुनिया में इस्लाम के साथ साजिश है। ये साजिश इसलिए हो रही है क्योंकि इस्लाम के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इस्लाम को फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चा धर्म अगर फैलता है तो ये सबसे बड़े धर्म की बात, सबसे बड़ी अच्छी बात है और इसमें हमको कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि इस तरीके की साजिश की जड़ हिंदुस्तान में नहीं बाहर मौजूद है। यहां अगर साजिश होती है वो तो नेताओं की साजिश है, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से अपने मतलब के लिए काम करते हैं। लेकिन धार्मिक साजिश यहां पर नहीं, इसकी जड़ें बाहर मौजूद हैं। ये हिंदू भाइयों को समझना चाहिए। तो एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बुरा, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बुरा हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी है। जो हर समय लड़ाई झगड़ा करे वो अल्लाह के लिए सबसे बुरा है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। पड़ोसी के लिए लोग कहते हैं कि पड़ोसी में के लिए जो है मुसलमान खराब हैं। पड़ोसियों के लिए, मुसलमानों के लिए जो आदेश है उससे बड़ा, उससे अच्छा आदेश कहीं हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया कौन है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया वह जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के लिए ये कहा कि वो मुसलमान नहीं है जो जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो। ऐसा मुसलमान कैसे दहशतगर्दी में शामिल हो सकता है? ऐसा मुसलमान कैसे किसी के ऊपर अन्याय कर सकता है? एक आप से पूछा गया कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल, आपसे पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल कौन सा इस्लाम सबसे अच्छा है? अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान देता, बड़ी फिलॉसफी की बात करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल, आपने बड़ा सीधा छोटा सा जवाब दिया जो इंसानियत में सबसे ऊपर है। आपने कहा कि भूखे को खाना देना सबसे बड़ा इस्लाम है, भूखे को खाना देना और जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना। भूखे को खाना देना इससे बड़ी इंसानियत कोई नहीं है। और जान पहचान, अगर हम जानते हैं कि फलाने इनका नाम अयूब साहब है, चलिए मुसलमान है, चलिए सलाम हमने किया। और गैर जान पहचान, हम जानते नहीं, जिसको हम जानते नहीं तो उसका हम तो मजहब भी नहीं जानते, उसको भी सलाम करो। इससे बड़े सांप्रदायिक सद्भाव, इससे बड़ी इंसानियत की बात और क्या हो सकती है? यह कहा जाता है कि मुसलमान के लिए, पहले मैं भी कहता था, मैं जब भ्रमित था कहता था मुसलमानों के लिए इंसान वही है जो मुसलमान है, बाकी सब इंसाने नहीं है, मैं कहा करता था। लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी क्योंकि मैं इस्लाम को नहीं जानता था। माफ करिए, जिस इस्लाम की मैं बात कर रहा हूं, जिन बड़ाइयों को मैं कह रहा हूं,
वो केवल इस्लाम के लिए कर रहा हूं। बड़ाई इस्लाम की है, मुसलमान की नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि कुछ मुसलमानों का अखलाक इस्लाम से ठीक उल्टा है। इसी वजह से आज इस्लाम की छवि खराब हो रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस्लाम में मुसलमान अच्छे नहीं, बहुत अच्छे, एक से एक अच्छे मुसलमान हैं, और उन्हीं अच्छे मुसलमानों की वजह से आज भी इस्लाम आगे जा रहा है। और हमने जब इस्लाम का मुताला किया तो मैंने पाया कि सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम में जितनी नजदीकी है, किसी में नजदीकी नहीं है। इस्लाम कहता है अल्लाह यानी परमेश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, उसका न और वो अकेला है, न उसका कोई बेटा है न बेटी है। सनातन वैदिक धर्म भी कहता है कि परमेश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, उसका न कोई बेटा है न बेटी है, वो अकेला है। श्वेताश्वतरोपनिषद के अध्याय 6 का 8वां श्लोक है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्याधिकस्य दृश्यते। उस परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं हैं और उसके समान अथवा उससे बढ़कर भी कोई दिखाई नहीं देता, यानी वह परमेश्वर अद्वितीय है। और इसी में श्वेताश्वतरोपनिषद में है कि नयन मूर्धम न तिर्यंचम न मध्य परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। वो परमेश्वर इतना महान है, इतना अनंत है, इतना बड़ा है कि उसको इधर उधर से अथवा मध्य से किसी भी तरीके से उसको छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनंत है। अल्लाहु अकबर, वो सबसे बड़ा है। और उस महान परमेश्वर की कोई उपमा नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है, यानी वो अतुलनीय है। तो और यही इस्लाम कहता है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के समान कोई नहीं है, और न उसका कोई बेटा है न बेटी है। कुरान मजीद के सूरा 6 आयत नंबर 101 में है कि वह जमीनों और आसमानों का सर्वप्रथम पैदा करने वाला है, उसके कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी पत्नी ही नहीं। लेकिन दूसरे धर्म क्या कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, कोई कुछ बेटा बताता है तो कोई कुछ बताता है। तो आज हमारे हिंदुस्तान में बेटा तो दूर रहा, न जाने कितने लोग कहते हैं मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, यानी खुलेआम परमेश्वर घूम रहे हैं यहां। तो इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। अल्लाह कितना बड़ा है, इसकी अगर मिसाल देखनी है तो केवल प्रकृति में देखो, नेचर में देखो। एक परिंदा, एक कीड़ा, वो पत्तियां खाता है और पत्तियां खाने के बाद वो घंटों उड़ता रहता है, घंटों उड़ता है। क्या कोई ऐसा हवाई जहाज बना सकती है विज्ञान कि वो पत्ते खाए और पत्ते खाने के बाद घंटों उड़ता रहे, और जब उसको पेट्रोल की जरूरत पड़े तो खुद पेट्रोल का इंतजाम कर ले, पेट्रोल पंप में जाए बिना पैसे के पेट्रोल का इंतजाम कर ले, वो बिना पैसे के अपने पेट्रोल का इंतजाम कर लेता है। और एक परिंदा कीड़े मकोड़े खाता है और कीड़े मकोड़े खाने के बाद घंटों उड़ता है, जहां चाह बैठ गया, उसको एरोड्रम की जरूरत नहीं है, हवाई पट्टी की जरूरत नहीं है, न हेलीपैड की जरूरत है, चाहे दीवार में बैठ गया चाहे पेड़ में बैठ गया। क्या ऐसा कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बन सकता है जो अपने पेट्रोल का इंतजाम करे, इस तरीके से जहां चाहे वहां उतर जाए? तो ये मनुष्य को देखिए किस तरीके से उसकी रचना की गई, ब्रह्मांड को देखिए कि आज एक जो हम ये सूरज देखते हैं, इस तरीके के सूरज कितने हैं, जो तारे हैं, इन तारों की ब्रह्मांड में इतनी संख्या है जितनी कि समुद्र के अंदर रेत है, इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा। समुद्र में जितने रेत हैं के कण हैं, टुकड़े हैं, इससे भी करोड़ों गुना ज्यादा तारे हैं। और इनकी दूरी कितनी है?
प्रकाश यानी लाइट की चाल होती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की चाल से अगर कोई, इस वेग से अगर कोई चीज चले, इस वेलोसिटी से, और 1 साल चलती रहे, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से चले और 1 साल तक चलती रहे, तो इसको 1 प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। तो आज जो है विज्ञान ने जो देखा है, अंतिम जो आप आकाशगंगा देखी है, वो जो देखी है नहीं, जो देखी है वो 13.6 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। कहने का मतलब कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की चाल से अगर चले तो 13 अरब 60 करोड़ साल लग जाएं वहां पहुंचने में। इतनी दूर आकाशगंगा देखी, इतना विशाल ब्रह्मांड है, और इस विशाल ब्रह्मांड को बनाने वाला जो परमेश्वर है वो कितना अनंत होगा, इसको देखने के बाद अपने आप मुंह से निकल आता है अल्लाहु अकबर, उससे बड़ा कोई नहीं है। और ऐसे परमेश्वर को झूठे ढंग से लोग क्या कहते हैं मैं ही परमेश्वर हूं। लोग ये समझें कि इसी दुनिया में, इस छोटी सी दुनिया में, जिसकी हैसियत जीरो की तरीके से इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में वो पैदा हुआ, इस दुनिया में बढ़ा, इसी में बूढ़ा हुआ, बीमार हुआ और मर गया। तो अगर अल्लाह मर गया, परमेश्वर मर गया, तो इस ब्रह्मांड का क्या होगा? वो 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में मर गया। छोटी सी चीज समझ में नहीं आती, इतनी छोटी सी चीज लोगों की समझ में नहीं थी कि कितना बड़ा असत्य को लेकर के चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लोग जैसे जैसे वो विकास कर रहे हैं, तो दुनियावी जिंदगी के लालच में इस झूठ की ओर और फंसते चले जा रहे हैं। पहले इतना झूठ लोग मानने वाले नहीं थे जितना आज झूठ मानने वाले लोग हैं। आज मैंने देखा है कि इस तरीके की चीजें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और लोग अपनी अपनी दुकान सजा करके लोग आगे आ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम असत्य को मानने लगे हैं। अगर हम इस सच्चाई को मान लें कि परमेश्वर एक है, अनंत है, वो सबसे बड़ा है, उसकी कोई तुलना नहीं है, वो अद्वितीय है, वो अतुलनीय है, तो इस तरीके के झूठ में हम न फंसें और अपना भी हम परलोक सुधारें और दूसरे का परलोक सुधारें। अंत में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भटके हुए हैं उनको सद्बुद्धि दे और हम सबको पथभ्रष्ट होने से बचाए, सच्ची राह दिखाए। ओम शांति शांति शांति।